Welcome everyone. Before we begin the circle, please allow me to read the guidelines. Healing Circle, they are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to treat each other with kindness and respect. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We listen to each other with compassion and curiosity. We trust each of us has guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. Thank you for being here with us today. We have our speaker, Divya Sharma, who has always been on the other side whenever we have healing circles. So she is one of the speakers for today. She's a blood cancer winner who believes cancer has been a blessing in her life and taught her the real meaning of life. She says cancer has made her look within and realize the power we hold within us. She has not only conquered cancer herself, but she has been inspiring millions of cancer patients by sharing journeys of other cancer warriors with those fighting it. So, welcome, Divya. Very warm welcome to Healing Circle Talks. Before we begin, I really, I'm curious to ask you this question. So, Divya called me today. He Yeah. well, how it's going to be, and I said, okay, this is going to be the flow, but I am changing the flow now. Hola. So, how does it feel? You are doing cheating, lying. How does it feel? So yeah, I'm always on the other side, and being on this side, like I'm too excited and nervous. I'm the youngest one here, always listening to others, and now here I am speaking for all. Yeah, she was like, अरे मैं सबसे छोटी हूँ. मैंने कहा नहीं कोई तो होगा जो आपसे छोटा होगा. Yeah, so always it's our pleasure to have you with us, Divya. It's a blessing to know you, to work with you, and those who don't know, yesterday was Divya's farewell from Zenati.in Navin Center because Divya is going for higher studies and she's going to be the psychologist now. So I told Divya that no, a couple of months, 7 months back, I asked her a message, Divya, we have this opening. Would you like to join us? So I told her that you will receive a message from me again after a few years. Would you like to be the psycho-oncologist at onco-psychologist with us? So really wish her all the best for her next ventures. I really want to. It will be great if we can have the Healing Circle talks by Divya. It will be a good gift to all of us. So thank you, Divya. Thank you so much. Many of us are already we know Divya and her journey. So and there are many of us who are new who are not aware of Divya's journey. So Divya, would you like to start by sharing your journey and how did you know or come to know about cancer? What was it when you were diagnosed with it? When did it happen? Yeah, so like my journey as a patient started before cancer journey. So I was in my 10th standard, and I had a small cyst on my right hand, right shoulder. So we got it checked, and I got operated for the same. And then because of my skin tendency, I had a scar on my shoulder. So जितना बड़ा वो cyst नहीं था, उससे ज़्यादा scar हो गया था. And then I again had to get operated for the same. So yeah, I got operated for 2 times for that. And then in 2015, it was in November when I came at home, and by like I was getting ready for my tuitions. So मैं घर पर आई, and I had a very extreme pain in my right side of my stomach. तो मुझे लगा कि मैं ट्यूशन जाकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम डॉक्टर को दिखा देंगे. But पेन इतना बढ़ गया that I had to rush to the doctor in emergency. So I got myself checked and sonography karwai, and we get to know that it was an ovarian cyst. It got twisted, and it was an orange size cyst, like बहुत बड़ा cyst था, and I had to get operated for the same. So we moved to Udaipur because वहाँ पर treatment option ज़्यादा अच्छे थे. So हम वहाँ गए और वहाँ पता पड़ा कि हमें ओवरी निकालनी पड़ेगी. That was the only option left, and that too by an open surgery. So उस टाइम ये वाला ऑपरेशन हुआ. I got operated for it,
and then I got recovered. 2016 went well, and then came 2017, and I had so many plans for 2017. Like I had pre-planned everything for 2017, like in January only. Like I love making cards for others. So 15th Feb को पापा मम्मी की एनिवर्सरी आती है. So I was in Udaipur. I was planning that हमेशा मैं घर पे होती हूँ तो like मैं बाथरूम में छुप छुप कर कार्ड बनाती हूँ. I love making like handmade cards. So मुझे लगा मैं उदयपुर हूँ तो मैं अभी वहां पर अपने वहां रूम पर आराम से अच्छे से कार्ड बना सकती हूँ. सो और मेरी बर्थडे का भी मैंने बहुत प्लान कर लिया था. लाइक मुझे लगा कि ठीक है मैं कॉलेज रेगुलर जाऊंगी सो दैट आई कैन टेक लीव्स ऑन माय बर्थडे. So, but then suddenly I started having some issues with my health, like बहुत से spots हो गए थे body पर, and then I had blood blisters in my mouth. और उसके बाद I had menses for regular 1 month. So I got myself checked. मुझे लगा कोई gynecological problem होगी, but जब डॉक्टर को दिखाया तो she said कोई gynecological problem नहीं है. It is either dengue or anemia. तो हमने एक ही नाइट में आई थिंक 6 to 7 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया. इट वाज 30 जनवरी. सो व्हेन आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड फॉर दैट, एंड बहुत से बोले कि डेंगू हो सकता है, बहुत से बोले एनीमिया हो सकता है. बट फॉर्चुनेटली देयर वाज वन डॉक्टर जिसने बोला कि ना ये डेंगू है ना एनीमिया है, ये कुछ बड़ा है, सो आप और भी टेस्ट करवा लो. एंड ही सेड देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट फॉर यू. सो मेरे उस टाइम एग्जाम्स चल रहे थे, तो डॉक्टर सेड कि या तो आप एग्जाम चूज कर लो और या आप लाइफ चूज कर लो. ही वेरी ब्लंटली सेड दिस. सो उसके बाद रिपोर्ट्स हुई. मैं उदयपुर बुआ के साथ थी. पापा अगले दिन आए यहाँ पर, उदयपुर आए, एंड देन मेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट की उन्होंने 31 जनवरी को. और उसके बाद रिपोर्ट्स आई तो इट वाज लाइक डिटेक्टिंग फॉर कैंसर. मुझे ये नहीं पता था कि कैंसर है उस टाइम. तो हम एक रिपोर्ट सुबह आ गई थी, एक शाम को आने वाली थी. तो हम डॉक्टर के क्लिनिक पर गए, बुआ, मैं, अंकल और पापा. तो पापा और अंकल डॉक्टर के पास गए और बुआ और मैं कार में थे. सो हम कार में आई थिंक 1.5 या 2 घंटे तक वेट किया हम दोनों ने. एंड मैं सोच रही थी रिपोर्ट से दिखवा नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा है. एंड जब पापा और अंकल आए वापस कार की साइड, तो आई लाइक सॉ दैट दोनों की आईज बहुत ज्यादा रेड हो रही है. एंड आई वाज लाइक इतनी रेड क्यों है, सिर्फ डेंगू तो है ये. फिर हम लाइक उस टाइम मैं बहुत वीक थी, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लाइक आई मीन 4 हो गया था और प्लेटलेट्स सिर्फ 3000 थी. तो हम घर पर आ गए एंड दे ऑल सेड कि रेडी हो जाओ, हमें अहमदाबाद जाना है. आई वाज लाइक ओके, उदयपुर से अच्छा बेटर ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद है, तो डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं अहमदाबाद. तो ओके, हम रेडी हो गए. और उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैंसर के लिए जाना है, किसके लिए जाना है. आई वाज जस्ट कि ठीक है मेरी तबीयत खराब है और अहमदाबाद जाना है फॉर माई ट्रीटमेंट. उसके बाद मैं घर से बाहर आई तो आई सॉ एम्बुलेंस. तो मैंने बोला कि अहमदाबाद ही तो जाना है, तो हम सिंपल कार में क्यों नहीं जा सकते, एम्बुलेंस क्यों मंगा रहे हैं. बट उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं किसी से पूछ सकूं कि है ना हम एम्बुलेंस में क्यों जा रहे हैं. आई वाज सो वीक फिजिकली टू. सो हम एम्बुलेंस में गए और एम्बुलेंस में मैंने सुना पापा और अंकल बात कर रहे थे महावीर कैंसर हॉस्पिटल. तो उन्होंने महावीर कैंसर नहीं बोला था, महावीर हॉस्पिटल ही बोला था. तो आई न्यू कि महावीर हॉस्पिटल जयपुर में है और कैंसर हॉस्पिटल है. बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम. हम वहां पर पहुंचे अहमदाबाद, मैं एडमिट हुई और टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए और मुझे नहीं पता था कि कैंसर के टेस्ट हो रहे हैं. सो बोन मैरो का टर्न आया. पापा और अंकल मेरे पास आए कि हमें कोई टेस्ट करवाना है. तो मैंने बोला ठीक है करवा देंगे, इतने सारे चल ही रहे. पापा बोले कि पीछे पीठ में एक इंजेक्शन लगेगा एंड हल्का सा पेनफुल होगा. आई वाज लाइक ओके चलेगा. एंड देन हम जहाँ चैम्बर मतलब बोन मैरो टेस्ट एक चैम्बर में था और वो चैम्बर कीमोथेरेपी वार्ड में था. और हम वहां पे कीमोथेरेपी वार्ड में वेट कर रहे थे हमारे टर्न का. तो मैंने कीमोथेरेपी वार्ड वो लेटर्स पढ़ लिए थे सारा. एंड आई वाज लाइक कीमोथेरेपी तो कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है, तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ. एंड आई वाज लाइक कीमोथेरेपी कैंसर डिटेक्ट होने के बाद होती है और मैं यहाँ पर टेस्ट करवा रही हूँ. व्हाट इज दैट, लाइक आई वाज सो कंफ्यूज दैट टाइम. और कीमोथेरेपी वार्ड में सब लाइक सबको बॉटल्स ही चल रही थी. मुझे उस टाइम नहीं पता था कि कीमोथेरेपी होती कैसे है. सो आई वाज लाइक कीमोथेरेपी लिखा हुआ यहाँ पर है, सबको सिर्फ बॉटल्स चल रही है, ये तो सिर्फ नॉर्मल बॉटल्स चल रही है सबको. सो व्हाई आई एम हियर. बट सब ऑलरेडी वैसे ही इतना टेंशन में थे. तो आई वाज लाइक ठीक है, एनीवे आई गेट टू नो दैट मुझे ही हुआ है तो मुझे एट द एंड पता पड़ ही जाएगा. सो ठीक है, फिर मेरा टर्न आया. पापा बोले कि हल्का सा पेनफुल होगा,
संभाल लेना। मैंने कि ओके। तो मैं अंदर गई और वहां पर देखा कि जिसके भी टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिकॉज एनेस्थीसिया नहीं दिया था उनको किसी को, या फिर ऐसा मतलब सुन नहीं किया था। तो मैंने बोला कि इतना चिल्ला क्यों रहे, लाइक आई गॉट लिटिल स्कैर्ड एंड नर्वस कि इतना क्यों चिल्ला रहे, एक टेस्ट ही तो है, छोटा सा इंजेक्शन ही तो है। तो मेरा टर्न आया और मुझे टेस्ट किया, एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी पेनफुल। सो लाइक पेनफुल था, बट आई हैव अ हैबिट ऑफ चैंटिंग महामृत्युंजय मंत्र। जब भी मुझे या तो गुस्सा आता है, इरिटेट हूँ, या फिर कहीं डर लग रहा है, तो इंस्टेंटली मुझसे से वही निकलता है। तो मैं पूरे अपने टेस्ट के टाइम महामृत्युंजय मंत्र बोल रही थी और टेस्ट गॉट डन। पेनफुल था बट या आई मैनेज समहाउ। और टेस्ट पूरा हुआ। पापा को लगा था कि है ना सब रो रहे तो मैं भी रोऊंगी, और अंकल और पापा दोनों को, तो मैं भी रोऊंगी। पापा रूम में आए, चैम्बर में आए मुझे लेने की, टेस्ट हो गया है, मुझे लेने आए थे। उन्होंने पूछा कि है ना पेनफुल था क्या। लाइक मुझे तो पता था ऑब्वियसली बहुत पेनफुल था, बट आई नो मैं बोलूंगी पेनफुल है तो सबको टेंशन होगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं इतना नहीं था, पेनफुल हो गया। तो बोले सब क्यों रो रहे हैं इतना। बोला कि पता नहीं, इनको लगा होगा, मुझे नहीं लगा इतना पेनफुल। सो उसके मतलब उनके चेहरे, उन्हें बोला नहीं बट उनके चेहरे पे आई जस्ट सॉ फीलिंग ऑफ रिलैक्स्ड। सो दैट वाज अ टाइम I decided कि no matter what comes, what it is, I don't know, dengue, anemia, whatever, but I will keep smiling. That was the moment I decided कि मुझे बस हंसते रहना है. So yeah, उसके बाद बोन मैरो टेस्ट के बाद एक और टेस्ट होना था, तो हमें हॉस्पिटल के कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाना था। तो मैं अंकल और मामा के साथ गई और मेरा टेस्ट हो गया। अंकल ने मुझे अपनी जो फाइल थी हॉस्पिटल की वो हाथ में दी कि आप ये पकड़ो, मैं ऑटो लेके आता हूँ। मैंने फाइल पकड़ रखी थी एंड लाइक कैंसर हुआ है मुझे ये बहुत फिल्मी वे में पता पड़ा था कि मेरे हाथ में फाइल थी और मुझे हॉस्पिटल का पूरा नेम नहीं पता था कि पूरा क्या नेम है। मैंने हॉस्पिटल की फाइल पे पढ़ा किया ना, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आई वाज लाइक ओके मैं कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। एंड उसके बाद हम ऑटो में बैठे, हॉस्पिटल आए, मैं अपने बेड पर आई और बेडशीट देखा, पिल्लो कवर देखा, तो दोनों पे लिखा हुआ था कि है ना गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड देन आई कनेक्टेड डॉट्स कि ओके मैं कैंसर हॉस्पिटल में हूँ, मेरे टेस्ट हो रहे हैं इतने सारे, एंड दैट इज फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, कि मुझे कौन सा कैंसर है या नहीं है। आई वाज लाइक ओके देखते हैं, अभी तक रिपोर्ट थोड़ी आई है तो पहले क्यों सोचना। फिर डॉक्टर रिपोर्ट्स आ गई बोन मैरो की, एंड देन डॉक्टर केम एंड सेड लुक दिव्या, इट इज ब्लड कैंसर ALL, एंड आपको इतना महीना ट्रीटमेंट करवाना होगा, अहमदाबाद रहना पड़ेगा, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको ऐसा ध्यान रखना। लाइक उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल बताया कि कैसा ध्यान रखना है और क्या ट्रीटमेंट होगा। and like it is a shock for me that why getting to know I was diagnosed with cancer was not a shock for me. So like पहले like मैंने, मुझे अभी भी याद है कि मैंने विश की थी, like 2 विश की थी कि कुछ भी हो मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए एंड कैंसर नहीं होना चाहिए। लाइक हमें दिखाते हैं ना फिल्मों से, फिल्में स्टार्ट होती है उससे पहले एड आता है कैंसर पेशेंट्स को कैसे दिखाते हैं टीवी पर। तो आई गॉट स्कैर्ड फ्रॉम दैट एंड विश टू गॉड दैट कैंसर नहीं होना चाहिए कभी भी, इतना बड़ा वो होता है और ये सब, आई कांट गो थ्रू दैट। बट उस टाइम जब हुआ तब वो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। इट वाज जस्ट कि अभी तो ऑपरेशन से फ्री हुए थे, अभी वापस कैंसर, सो सिर्फ वही था कि है ना वापस क्यों हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर से। बट जब मैं पेरेटिक वार्ड में थी, तो जब आसपास देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे हैं और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देन आई वाज लाइक नो दिव्या, यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क व्हाई मी, बिकॉज इतने छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती और कौन से कर्मा एंड ऑल्सो या आई गॉट लाइक रेडी टू फाइट। उसके बाद हमें 1 हफ्ते का टाइम मिला था टू डिसाइड कि हमें ट्रीटमेंट कहाँ स्टार्ट करवाना है। उसके बाद फिर हमने दिखाया बहुत सी जगह, पर हम अहमदाबाद की ट्रीटमेंट से, फर्स्ट ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड थे, तो वी कंटिन्यू आवर ट्रीटमेंट इन अहमदाबाद। 2 कीमोथेरेपी हुई और मैं फर्स्ट कीमोथेरेपी में बहुत नर्वस थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कीमोथेरेपी कैसे होती है, और कीमोथेरेपी के बारे में हम पहले ही सुनते हैं कि बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड ऑल। तो उसके बाद फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, एंड थर्ड कीमोथेरेपी वाज जस्ट बिफोर माय बर्थडे। लाइक 28 फरवरी इज माय बर्थडे और 27 फरवरी को मेरा कीमोथेरेपी था। तो
और बर्थडे के लिए 2017 बर्थडे के लिए आई वाज सो एक्साइटेड, लाइक 19 इयर्स की जर्नी में मैं इतना एक्साइटेड नहीं थी. मुझे ब्लड डोनेट करना था और हमने प्लान्स बना रखे थे कि है ना, अगर पापा या मम्मी उदयपुर नहीं आएंगे तो मैं ब्यावर चली जाऊंगी. बट आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. सबको लगता है कि है ना, मैं अगर बोलती हूँ कि मैं एक्साइटेड थी बर्थडे के लिए, तो दैट माइट बी बिकॉज कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो ना कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ या पार्टी वगैरह करनी होगी, बिकॉज बहुत से बच्चे इसी के लिए एक्साइटेड होते हैं. बट दैट वाज नॉट विद मी. मुझे सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था और ब्लड डोनेट करना था. दैट वाज द ओनली विश आई हैड फॉर 2007 बर्थडे. बट फिर 2017 में जब मुझे 27 फरवरी को कन्वर्जेंस आ गए एकदम से. हम कीमोथेरेपी ले जाने के लिए तैयार हो रही थी, नाश्ता किया और फिर एकदम से, मुझे उसके बाद का याद नहीं है, मैं गिर गई, मम्मी बताते हैं, और सब ले गए, हॉस्पिटल गए. मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मम्मी की गोद में उठी थी, कार में थे हम, और मम्मी ने और अंकल ने पूछा कि है ना, आपका सिर नहीं दुख रहा है क्या, बिकॉज मैं सिर दर्द की कंप्लेन कर रही थी घर पर जब मैं बेहोश हो गई थी, आई थिंक. लाइक नहीं नहीं कर रहा है. और फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे और सब व्हील चेयर मंगा रहे थे. मैं फर्स्ट कीमोथेरेपी पे व्हील चेयर पे नहीं गई, सेकंड पे नहीं गई, तो अब थर्ड में क्यों मंगा रहे हैं, मैं चल सकती हूँ अभी भी. तो सिर्फ मुझे इतना याद है कि है ना, मैं व्हील चेयर पे बैठी और मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी. सिर्फ मुझे वहां तक का याद है. उसके बाद मेरी आंख सीधी खुली 1 मार्च को. तो आई वाज लाइक 1 मार्च को मेरे फ्रेंड्स सामने खड़े से मिलने आए हुए थे और मुझे है ना बोल रहे थे कि दिव्या हैप्पी बर्थडे एंड टू यू. एंड आई वाज लाइक, अभी क्यों बोल रहे हो आप हैप्पी बर्थडे, मेरा तो बर्थडे 28 फेब को आता है और अभी से 27 फरवरी है. लाइक मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ और मैं कहाँ थी. तो लाइक मैं उस टाइम मुंह में बहुत पाइस वगैरह लगे हुए थे, तो मैं बहुत है ना कंफ्यूजिंग आई से देख रही थी इधर उधर कि क्या हो रहा है. एंड मम्मी ने बोला कि 1 मार्च से और है ना आपके फ्रेंड्स आए हुए आपको विश करने के लिए बिलेटेड बर्थडे. ओके कि कुछ तो हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ. डॉक्टर्स ने उस टाइम बिल्कुल कंप्लीटली मना कर दिया था कि है ना अब नहीं बचेगी, और सिर्फ मम्मी थे पास में मेरे और कोई नहीं था. पापा भी ब्यावर आ चुके थे उस टाइम और फिर वापस अहमदाबाद आए और सब सही करवाया. और उसके बाद या वेंटिलेटर 3-4 दिन के लिए रही थी वेंटिलेटर पे और उसके बाद फिर से निकल गई थी. लाइक डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी थी और फैमिली को बोल दिया था कि आप भूल जाओ कि ये बचेगी अब. बट ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली. और अब यहाँ पर हूँ. उसके बाद आई हैड माय कीमोथेरेपी सेशंस एंड रेडियोथेरेपी और फिर सब सही हो गया. लाइक ट्रीटमेंट में बहुत सही था. ट्रीटमेंट में इतना कुछ सोचने को नहीं था कि है ना ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब, बिकॉज फिजिकल साइड इफेक्ट्स थे बट ठीक है सही हो गए थे. बट ट्रीटमेंट जब खत्म हुआ दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर 2017 में, वो ज्यादा है ना डिफिकल्ट पीरियड था. इट वाज लाइक सारा स्ट्रेस अब निकल रहा है. लाइक दैट वाज सो कंफ्यूजिंग. मैं दिन में 15-15 घंटे तक सोई रहती थी. लाइक आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि मुझे क्या हो रहा है. बट फिर मैंने ना लिखना स्टार्ट कर दिया था कि आई स्टार्टेड राइटिंग व्हाट आई फेल्ट और ड्राइंग स्टार्ट कर दी, क्विलिंग स्टार्ट कर दी. तो ये सब चीजें ऐसा नहीं कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए की थी, बस मुझे बहुत अच्छा लगता था करके. तो इन सब चीजों ने बहुत हेल्प की थी. और फिर कैंसर से ठीक हुए तो टाइफाइड हो गया और टाइफाइड की रिपोर्ट आज आज नेगेटिव आई तो अगले दिन जॉन्डिस हो गया. और वो दोनों ठीक हुए, थोड़े टाइम बाद स्वाइन फ्लू हो गया. सो या स्वाइन फ्लू पर भी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि पापा मम्मी और सबको बोल दिया कि आप भूल जाओ ये वापस आएगी और वेंटिलेटर पे कभी भी लेना पड़ सकता है. बट या ऐसी कंडीशन आई नहीं, वेंटिलेटर पर नहीं लेना पड़ा और या अब यहाँ पर हूँ. Oh my God. I think we'll all need a pause here to just understand, to just absorb what you have shared. Divya, how old are you? मैं अभी 23. And when you were diagnosed first time, how old were you? 18. Yeah. Divya, what gave you this courage कि आपने जब बताया कि and you are I think you are famous for your smiling face. One time I asked one of my team member, "Is Divya okay?" Because she messaged me, "Hi Didi."
एंड मैं जब दिव्या का मैसेज आता है तो ओके कुछ तो पक्का है से पूछा दिव्या ओके आई जस्ट गॉट अ मैसेज हाय दीदी एंड ही वाज लाइक या दिव्या इज ऑलवेज जॉली ऑलवेज स्माइली उसके साथ कभी कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं तो पूछो उससे क्या हुआ सो या सो आपने बताया कि व्हेन यू नो फर्स्ट टाइम यू थॉट कि आई विल ऑलवेज कैरी दैट स्माइल ऑन माय फेस ताकि आपके फैमिली को भी दुख नहीं हो आपको उस सिचुएशन में देख करके दैट यू आर गोइंग टू टेक ऑल दोस इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग सो और तब तो काफी मुझे तो याद भी नहीं 18 साल में मैं क्या कर रही थी और क्या सोचती थी सो व्हाट गिव यू लॉट्स ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ टू गो थ्रू व्हाट यू हैव गॉन थ्रू Like, I think being selfish and being selfless at the same time. Like, I was selfish that I can't see my family or loved ones while like crying. I don't know death के बाद we get to see what happens and like नीचे क्या होता है कौन क्या करता है रोता है नहीं रोता है but I had already seen like my family members and my loved ones crying so much just after my diagnosis so I was like नहीं ऐसा नहीं हो सकता like वो सारे इतने सारे efforts कर रहे हैं so why can't I so yeah fighting for them kept me going. okay and when you first time got to know after this mystery that okay it is cancer how did it feel Like I was completely blank. मुझे ये नहीं था कि कैंसर हुआ है कैंसर वर्ड से डरने लगा था उस टाइम यही था कि 2015 में ही तो अभी ऑपरेशन हुआ है और एक महीने तक ड्रेसिंग चली ये सब हुआ है ओपन सर्जरी थी वीकनेस थी तो उसी से अभी तो बाहर आए हैं और फिर से इतना पूरा हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होगा तो है ना वापस है ना स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड यू नो इतना फिजिकल पेन भी होगा सब होगा तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ दैट कि है ना अभी एग्जाम्स भी और मैं उस टाइम उस एज में थी जहाँ लोग अपना है ना करियर सेटल करते हैं तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर थे उस टाइम बट इंस्टेंटली मैं अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड में थी हाथों हाथ मैंने बच्चों को देखा एंड दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी चीजों से निकल रहे हैं तो मैं नहीं पूछ सकती कि है ना व्हाई इट हैपेंड और अब क्या करना पड़ेगा क्या नहीं एंड ऑल okay great and what inspired you the most during that phase व्हाट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट मैं जब वेंटिलेटर पे थी तो वहां पर एक अंकल थे जिनका बेटा कोमा में था आई थिंक आईसीयू में उनके बेटे की ब्रेन सर्जरी हुई थी मुझे इतना अच्छे से याद नहीं सिर्फ अंकल का लाइक ब्लर ब्लर फॉगी चीजें है दिमाग में सो वो अंकल आते थे मेरे पास अंकल को पता था कि हिज सन इज नॉट गोइंग टू लाइक फाइट एंड हिज ओनली फॉर फ्यू डेज विथ हिम बट फिर भी वो अंकल आते थे टू इंस्पायर मी उनकी आंखों में आंसू होते थे और वह ना स्माइलिंग फेस के साथ मुझे इंस्पायर करते थे लाइक ही न्यू दैट कि हिज सन इज नॉट गोइंग टू लिव विथ हिम बट फिर भी वो हमारे साथ आते थे हमें इंस्पायर करते थे कि नहीं आप दिव्या कर सकती हो और फर्स्ट चीज ये थी और सेकंड ऑब्वियसली द सपोर्ट लाइक सॉरी मेहुल सर आई एम द luckiest person on the earth like I feel that I am loved by everyone in the world so yeah सबका सपोर्ट था तो that is what kept me going and inspired me to fight and घर में सबसे बड़े से बड़े लेकर सबसे छोटे तक सबका सपोर्ट है and even stranger supported us a lot so yeah हम हर जगह से हेल्प मिलती गई बिना मांगे वो भी wow. I always say you are a god gifted child yeah everyone blessed by everyone yes wow so a very inspiring journey and me and Divya got in touch with each other 2019 then I was in Ahmedabad the same place where Divya got her treatment so I was in Ahmedabad for 6-8 months when I was in the beginning phase of Laville's cancer and Gandhi Ashram and that's where I went to a hospital GCRI जहाँ पे दिव्या का ट्रीटमेंट हुआ था और वहाँ पे देयर वाज अ क्लाउनिंग ग्रुप सो आई डिड क्लाउनिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स बच्चों के लिए और वहाँ पे जब ग्रुप के जो और दैट टाइम व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद उस फेज में आई जस्ट केम बैक टू इंडिया आफ्टर नितेश पास्ड अवे एंड इट वाज ऑल वेरी फ्रेश और जब क्लाउनिंग हुआ हम सब ने किया और फिर बाद में ग्रुप ने पूछा कि बिकॉज आई वाज द न्यूएस्ट मेंबर देयर कि दे आस्क्ड मी अबाउट द जर्नी एंड एवरीथिंग और फिर मैंने बताया एंड वी रियली गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर वेरी वेल एंड देन दे कनेक्टेड मी कि देयर इज अ पर्सन इन अवर ग्रुप दिव्या उनका अभी भी ट्रीटमेंट हुआ है अभी भी चल रहा है एंड यू शुड रियली गाइड हर डाइटरी में क्या क्या खाना चाहिए एवरीथिंग टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक या व्हाई नॉट
And that was the time when I know, Divya, your first message came, and Yeah. I was going through that when we got in touch first time. So it was just, I would say, destiny कि हमें Yes. मिलना ही था. So great, and happy to know you. That was the best part, I would say. जैसे हम लोग मिले थे through Ahmedabad, where your treatment happened and where my journey started. So Yeah. yeah, thank you. So Divya, you have been working with, you have been rather interacting with lots of other cancer winners, cancer patients, caregivers who have lost their loved ones, and many others. You have been, I mean, you are the, I think, only one who knows stories of hundreds of other people. So would you like to share about that experience? How did it feel? What you have been doing from last approximately 1 year? Yeah. So like ये सब करके आई एम लाइक completely changed as a person because मेरी जर्नी कुछ भी नहीं है जो मैंने सारी सुनी है सबकी. लाइक मैं अगर सबकी शॉर्ट समरी दूं तो लाइक पायल भट्टाचार्य वो शी इज डीलिंग विथ 3 रेयर डिजीज एट द सेम टाइम. वो सिर्फ एक आंख से देख सकते हैं फिर भी शी हैज रिटन 3 books and she still have financial issues and many issues with her physically, but she is not ready to give up. And that was one thing that inspired me. And Mehul sir, of course, like stage 4 cancer survivor, जो सब सिर्फ यही बिलीव करते हैं कि है ना अभी के मोमेंट में जियो और बाहर के लिए कोई है ना सेलिब्रेट करने के लिए ओकेजन का वेट मत करो. So yeah, that is what inspired me, and like just enjoy in the moment and don't wait for an occasion. Atul sir, obviously, 3 times survivor. Like एक बार हुआ okay, second time हुआ okay, but you get frustrated कि बार बार क्यों होता जा रहा है. But he's like ठीक है हो गया है ले लेंगे. वंदना महाजन मैम जिन्हें अभी रोज की 15-20 टैबलेट्स लेनी पड़ती है एंड शी नोज कि अगर वो आज अपने टैबलेट नहीं लेंगे तो टुमारो शी कैन डाई. दैट इज व्हाट शी सेज. सो बट फिर भी शी इज लाइक ठीक है ना मेरी लाइफ का पावर बटन मेरे हाथ में ही है. मैं ऐसे सोच सकती हूँ. इट्स वेरी इजी टू से कि ठीक है आप है ना दूसरी साइड देखो एटलीस्ट आप टैबलेट्स लेके जिंदा रह सकते हो. आपने 1 साल ले ली 2 साल ले ली बट यू कांट स्टे लाइक दैट फॉर लाइफ. दैट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू गेट एंग्री. एंड जब आपको पता होता है कि ठीक है आपके पास टैबलेट्स है आप दोनों चीजें कर सकते हो इस चीज से कि ठीक है आपने नहीं ली एंड यू कैन एंड योर लाइफ. आपने ले ली आप चलते रहो. एंड इस केस में मोस्टली जो डिसीजन लेंगे लोग थोड़े टाइम बाद एंड कर देंगे. आई थिंक लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है लोगों के लिए कि इतना करेज नहीं होता है. बट शी लाइक इतना उसके बाद भी कैंसर के बाद भी उनके साथ बहुत कुछ होता जाता है बट शी इज नॉट रेडी टू लाइक गिव अप. सो या ऐसी बहुत सारी जर्नी थी केयर गिवर्स की भी. मनीष सर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो हर वाइफ एक्सपायर्ड जस्ट 1 month बिफोर आई शेड्यूल्ड एन इंटरव्यू. सो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है लाइक इट्स माय वाइफ्स जर्नी और इट्स बीन जस्ट 1 month. सो आई वाज सो कंफ्यूज एंड आई वाज लाइक सो नर्वस कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. लाइक आई एम ऑन द पेशेंट साइड. मुझे केयर गिवर की साइड का इतना नहीं पता है. मुझे केयर गिवर का इंटरव्यू लेना है और वो भी ऐसा जिनका लाइक ही लॉस्ट हिज वाइफ तो उनका लेना है और वो भी इतना टाइम नहीं हुआ है. तो हाउ विल आई टेक और ये सब. बट जब उनका इंटरव्यू लिया तो आई मीन लाइक हेड्स ऑफ टू हिम जो पूरा था. लाइक शी वाज 3 times लाइक diagnosed with 3 times with ovarian cancer. और उन्होंने एंड ऑफ लाइफ कन्वर्सेशन की उनकी वाइफ के साथ और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स लाइक. सो या और बहुत सी बार जर्नी ऐसी थी कि मैं आर्टिकल लिख रही हूँ मुझे जर्नी सुननी है उनकी तो मुझे पॉज करना पड़ता था बिकॉज इट वाज टू मच टू हैंडल लाइक टू हेवी फॉर मी कि इतनी इंस्पायरिंग जर्नी सुनना. तो या इट हैज चेंज्ड मी अ लॉट. लाइक मेरी जर्नी उन सबके सामने कुछ भी नहीं है लाइक. That's true. Everyone's journey is very motivational, very inspiring. And I always tell Divya कि आपने सबकी stories में है ना heart and soul डाल दिया है. So the way she has been interacting with everyone, writing it, and she always say that I want to do justice to every story. कुछ भी missing नहीं होना चाहिए उसमें से because it's their journey, it's their expressions, it's their experience, and I want to put it as it is. Don't want to change anything, and I really want to ensure कि भले ही time ज़्यादा लगे या जैसे भी हो,
I want to do justice to their story because it is unique, it is very close to their heart. And hats off to you, Divya, the way, because you have gone through the similar journey, and many times it becomes overwhelming. And you relive your journey also when you're talking to somebody else about their cancer journey. But never once you said no, never once you said, I'm tired, or I can't do this, or it's too much for me. You always took it very positively, happily, and the inspiration which you got from them, the inspiration which you have been giving to everyone else as well. So thank you so much for. Like, listening to others' journey has always like motivated me to keep going, like continue my work. Yeah, that's true. So yeah, what's your purpose of life? Oh, purpose of life as of now, just like just be happy, peaceful, and not fall into materialistic things. Like Mm. that is, Hey, and help as much as I can, and keep everyone happy. okay. Thank you. I will come back to you on that materialistic question after this call. Yeah, no, like seriously, like अभी like had I not been diagnosed with cancer, तो मैं उस एज ग्रुप में होती जहाँ पर teenagers fall into that Love? materialistic world and social media world. So मैं भी उसी एज ग्रुप में थी और like but cancer has changed me. अभी the only goal is to help people and be happy and peaceful. Yeah. Thank you. So great. So, yeah, what's your biggest fear, if you have any? Sorry, can you please repeat? What's your biggest fear, if you have any? Biggest fear, like losing my loved ones. Like, Hmm. yeah, I can't imagine being at their place. So yeah, I like पूरी journey पे मैं अगर relax थी और smile कर रही थी, that was only because I was thankful कि इस side पर मैं हूँ, मैं दूसरी side पर नहीं हूँ. Wow, it's a very deep thing you have shared. It's very deep. Can't imagine this. You actually thought about that. Yeah, because I can't see any of my loved ones or family members being on my place, like bone marrow test, chemotherapy side effects, and being on that deathbed and hearing from doctors ki, you are going to lose her. So yeah, I'm not that much strong in that part. But you I were like अभी भी कुछ होना है तो ठीक है. I am ready to fight. Don't give them anything. okay. Wow, it's a big thing to say, Divya. Um, I'm just speechless after I heard that. Okay. Divya, what advice you would want to give to other people who are going through the similar journey? Firstly, to kids, because I see you also done clowning, and आपने भी बच्चे जिनको कैंसर होता है उनके साथ में टाइम स्पेंड किया है. So what advice you would want to give to them? Like first is accept. हम जब हमें पता लगता है कि ये कैंसर है तो हम सब डिनाइल फेज में ही होते हैं और जब तक हम डिनाइल फेज में है तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे. सो जस्ट फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल ट्रीटमेंट. ठीक है, हमेशा हमें पता होता है कि हर बीमारी का एक हम बोलते हैं ना, हम सबकी एक्सपायरी डेट होती है. तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही फॉर्मूला था कि ठीक है, हमें नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है तो ज्यादा 5-7 दिन रुकता है और टाइफाइड होता है तो मेनली 15 days 20 days. वैसे ही कैंसर है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, एक साल 1.5 साल या कितना भी है, बट इट हैज एक्सपायरी डेट टू. सो सिर्फ यही फॉर्मूला दिमाग में रख के चलो आप. एंड हम नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि हम हर बार है ना पॉजिटिव रह सकते हैं. हम नेगेटिव थॉट्स आते हैं बट डोंट फाइट विद देम, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, बिकॉज अवॉइड करना या फाइट करना आपको ज्यादा हार्म करता है. वंस यू एक्सेप्ट दैट ओके यू आर नॉट फीलिंग लो, तो इजी हो जाता है कि ओके यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग. Right. Usually people give expiry time to life, but आपने तो treatment को ही expire कर दिया है. And that's the best thing कि treatment का expiry date है, हमारा नहीं है. हाँ, हम हमारे की सोच, लाइक कैंसर डायग्नोसिस आता है तो हम बोलते हैं कि है ना हमारा डेथ सर्टिफिकेट आ गया हाथ में. आप ये सोचो ना, कैंसर का बर्थ सर्टिफिकेट आया है हाथ में और आपके हाथ में उसको डेथ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना.
That's true. Very true. Wow. Yes. Okay. What's your favorite quote? What's my favorite quote? Like, laughter is the best medicine. And I had cancer, but cancer never had me. I Wow. didn't give cancer that power to, like, yeah. Yeah. Wow. It's really nice. Thank you. Divya, did you make any lifestyle changes when you were going through that journey, or did you make anything after the journey? लाइफस्टाइल चेंजेस सिर्फ यही था, मतलब जो मैं बाहर पहले भी इतना नहीं खाती थी और ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं खाया मैंने, और ना ट्रीटमेंट के टाइम खाया, सब घर पे ही खाया और सब बहुत ध्यान रखते थे। तो फिजिकली ऐसा कुछ नहीं था, मेंटली बहुत चेंजेस आए थे, लाइक इमोशनली मैंने खुद से बात करना ज्यादा शुरू कर दिया, एंड वी टॉक अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ टॉक, सो या दैट इज व्हाट हेल्प मी अ लॉट। अब ऐसा हो गया है कि है ना, हम बोलते हैं ना कि दूसरों के साथ हम फ्रेंडशिप करते, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम एफर्ट्स डालते हैं पूरे टू अंडरस्टैंड देम, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, बट खुद के साथ ये सब नहीं करते हम। सो कैंसर जर्नी पे मेरा फोकस सिर्फ यही था कि है ना, टू मेक अ ग्रेट बॉन्ड विद माई सेल्फ। सो जब मैं अकेली हूँ तो भी आई नो कि मैं अपनी कंपनी में खुश हूँ। सो या मैं अब ऐसा हो गया कि है ना, दिन में कभी भी मैं कांच के सामने जाके खुद को स्माइल करती हूँ, एंड दैट कम्स नेचुरली, मुझे याद नहीं करना पड़ता है कि है ना मुझे कांच के सामने जाना है और खुद को आई लव यू बोलना है, ऐसा नहीं है कि मुझे याद रखना पड़ता है, इट कम्स नेचुरली। सो या once you start loving yourself, you feel loved by everyone in the world. क्या बात है. Wow, okay. Was it like this before, or it happened after cancer came in your life? No, I was not even 1% of what I am today. It's just because of cancer. Like cancer, इसलिए तो मैं बोलती हूँ cancer has been a blessing for me. It has changed me a lot. अगर I don't know who all have joined with my family or relatives, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे यही सुनने को मिलेगा कि आपको है ना ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी. I was so ना reserved and shy kind of person. और मैं राइटिंग में बिल्कुल नहीं थी, और इतना जो मैं अभी जॉली नेचर है वो उतना पहले नहीं था। ऐसा नहीं पहले मैं अपसेट रहती थी, बट या अभी बहुत अलग टाइप का एक्साइटमेंट है। ट्रीटमेंट के टाइम भी ऐसा होता था कि रात को नींद नहीं आती थी, बहुत सी बार रात को नींद नहीं आती बिकॉज आई वॉज टू अपसेट, और विदाउट एनी रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल। पर दूसरी साइड पे ऐसी भी है ना रात थी जब मुझे नींद नहीं आती बिकॉज आई वॉज टू हैप्पी और टू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे, एंड आई डोंट नो, कोई रीजन नहीं था मेरे पास कि नेक्स्ट डे क्या होगा, नो कोई प्लान नहीं थे, इट्स जस्ट कि आई वाज टू हैप्पी। Hey, wow. Divya, this question is coming directly from me, as in I have this query. Ki, when you talk about happiness, see, we all have times in our lives when we are very stressful. ठीक है? So, and we go through it every now and then. Stress automatically comes. और हमें फिर बार बार सोचना पड़ता है कि ओके स्ट्रेस नहीं लेना है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस, बट देन स्टिल स्ट्रेस कम्स. सो बट यू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एवरी डे, एवरी मोमेंट. So can you share your thoughts on how happiness, or how being happy every moment really change your whatever work you are doing or whatever thing you are thinking? So happiness से कितना help मिलता है is what my question is. आप हर मोमेंट हैप्पी हो तो वैसे भी आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला है। लाइक मुझे अभी भी याद है इन मार्च 2017, दैट वाज अ लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग मंथ फॉर मी। मैं मुझे याद है मैं मम्मी को बोलती थी कि है ना मुझे स्माइल करना है, बट आई रियली वांटेड टू स्माइल, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, असली में मुझे स्माइल करना है और मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ स्माइल करने को, बट एक्सप्रेशन जब आते तो इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे स्माइल करना है और मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 100%, बट इट्स लाइक समथिंग इज पुलिंग मी बैक कि नहीं, नो यू कांट स्माइल। सो मैं उनको बोलती थी कि मैं वापस कभी खड़ी हो पाऊंगी या स्माइल कर पाऊंगी क्या। सो आई हैव सीन दैट फेज व्हेन आई रियली वांटेड टू स्माइल, और नाउ दैट आई कैन स्माइल एंड बी हैप्पी, तो व्हाई टू वेस्ट एनी सेकंड। And how it helps you, or how it helped you in your recovery, or now how it helps you in doing whatever you do every day. अभी ऐसा है कि कुछ भी स्ट्रेस आ जाए तो मैं सिर्फ हंस लेती हूँ तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। लाइक अभी मैं जो डर है तो मुझे हंसी आएगी, स्ट्रेस है तो हंसी आएगी, इवन फियर ऑफ रिलैप्स है तो भी मुझे हंसी आएगी। लाइक हैप्पीनेस इज कांस्टेंट इन माय लाइफ। अभी भी मैं सेशन से पहले बहुत डर रही थी, एंड आई वाज लाइक
laughing all the day. मैं सबको ये बोलती थी मुझे ना डर वाली हंसी आ रही है, तो सब मुझे बोलते कि डर वाली हंसी कौन सी होती है तुम्हारी? मेरी बहुत सारी हंसी है, नर्वसनेस वाली हंसी है, स्ट्रेस वाली हंसी है. Yeah. Okay. Got it. Okay. So, yeah. So, Divya, and you have been asking this question to everyone by now. Every crisis in our life teaches you a lesson. So, can you share about lessons which cancer taught you? Yeah, cancer has taught me to just live in the moment. आप बात का इतना मत सोचो. Like for us, success is like living a luxurious life and having branded things. सब success को ऐसा ही मानते हैं. But for me, success is now like being happy and peaceful. अगर आप life में peaceful हो, अगर आप बोल रहे हो that I am at peace, that means आप life के हर part में हर part से satisfied हो. आपको peace इतनी जल्दी नहीं मिलता है. So if you say you are happy and peaceful, that compile all the parts of your life. And second thing is बालों का बहुत होता है लोगों को, है ना, कैंसर ट्रीटमेंट में कि हमारे बाल जा रहे हैं और ये सब. बट हेयर इज नथिंग टू डू विद द ब्यूटी. और हेयर हम हमारे साथ है, हमारे पास हेयर है या नहीं है, हमारी लाइफ नॉर्मल होती है, हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है. सो चूज योर लाइफ ओवर ब्यूटी. और थर्ड ये था कि है ना, हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि वी अंडरस्टैंड यू, हम समझते हैं आपको. दूसरा कोई भी हमें बताता है कि है ना दैट इज व्हाट इज मेकिंग अस अपसेट, तो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि हम सामने वाले को सही में समझते हैं क्या. सो मेरी जर्नी पे भी ऐसा था कि आई एम द वन हु कैनॉट लाइक share my feelings with everyone, and that is why I started writing, and that helped me a lot. So मैंने बाय चांस कभी किसी से शेयर की है, सो हमें पता पड़ जाता है कि हमें कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है. तो मुझे 2 बार सुनने को मिल गया कि है ना वी अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम आई न्यू दैट नो यू कांट. तो आप मत बोलो कि है ना आप समझते हो. सो या मुझे उससे सीखने को मिला कि है ना हमें किसी को बोलने से पहले कि हम आपको समझते, एक बार खुद स्टेप बैक करके थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं, ओके हम आपकी प्लेस पे नहीं है, हम आपको नहीं समझते हैं, बट वी आर विथ यू, वी आर विथ यू टू हेल्प यू एंड मेक यू कंफर्टेबल एज मच एज वी कैन. सो या और आप कुछ भी है, आप दूसरों की हेल्प करो, आपको अपने आप पीस मिल जाएगा. एंड मेक अ ग्रेट बॉन्ड विथ योरसेल्फ, दैट इज इम्पोर्टेंट. हम दूसरों के साथ बहुत एफर्ट्स डालते हैं, कोई हमसे नाराज है या कुछ भी है, हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो वी पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स, बट हम खुद के साथ कोई एफर्ट नहीं डालते हैं. हम बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स एंड बी लाइक माइंडफुल ऑफ व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक. And don't fight with their emotions, accept them and surrender yourself to negative emotions. Like people say कि है ना divert your mind, आपको अगर नेगेटिव फील हो रहा है, स्ट्रेस में हो, तो आप ये काम कर लो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो काम कर लो. बट आई डोंट बिलीव इन दैट. क्योंकि आपने ठीक है, आप मेरा अगर मुझे अगर लो फील हो रहा है तो मैं थोड़ी देर तक पेंटिंग कर लूंगी, बट जैसे ही मेरी पेंटिंग खत्म होगी मैं वापस लो फील करने लग जाऊंगी, एंड दैट इज नॉट द सोल्यूशन. तो इससे अच्छा है कि आप जो फील कर रहे हो लेट इट बी. आप थोड़े मोमेंट के लिए अपसेट हो तो कोई बात नहीं, चलता है, बट जब आप सरेंडर कर दोगे खुद को और सब एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप जब उस सिचुएशन से बाहर आओगे तो आप पहले से ज्यादा और स्ट्रांग हो जाओगे. सो माइंड डाइवर्ट करने जैसा मेरे लिए कुछ नहीं होता है. आई डोंट बिलीव इन दैट. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम बोलते हैं ना कि बहुत सी बार मैंने सुना है कि कैंसर तो हो गया ना, अब क्यों आप है ना इतनी डेट्स याद रखते हो और आपकी सारी फेजेस याद रखते हो. वी शुड फॉरगिव आवर बैड मेमोरीज एंड बैड फेजेस. तो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती कि वाई लाइक अभी मैं जो हूँ, अभी मैं इतना हंस रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कैंसर. जब मुझे किसी चीज से इतना अच्छा सीखने को मिला है और मुझे पूरा चेंज किया है, तो मैं उसको कैसे भूल जाऊं. और भूलने जैसा कुछ होता भी नहीं है असली में. वी कांट फॉरगेट सच फेजेस. तो जब हम किसी चीज को बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं, तो हमें उससे दूर क्यों भागना. आप कब तक दूर भागोगे भूल कर. सो या जस्ट एक्सेप्ट दैट. True, very true. Wow, lots of lessons cancer taught you. Yeah, so many. The list is too long. Yeah. So Divya, when you were hearing other people's stories, their journeys, what thoughts were coming to your mind when you were listening to them and writing it? Like what thoughts were coming कि ये सब इतना से कैसे निकल गए.
और सबसे अलग अलग कुछ सीखने को मिला, सबकी जर्नी ने अलग अलग चीजें सिखाई। जैसे केयर गिवर्स का पार्ट था, तो केयर गिवर्स का पार्ट दिखाया कि ओके, ऐसा नहीं है कि है ना हम हमेशा इस साइड रह सकते हैं, हमें उस साइड भी कभी ना कभी तो आना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो या दैट हैज मेड मी स्ट्रांग। Okay, wow. Just a minute. Yeah, Abhilasha wants to say something. या Hi, Abhilasha, you want to speak something? Anyway, so Divya, my question to you before we move ahead कि आपको वो अपनी जर्नी की पिक्चर्स अभी शेयर करनी है, और आई एम गोइंग टू ओपन द सर्कल फॉर एवरीवन एल्स टू आस्क क्वेश्चंस टू यू लाइक यू हैव बीन डूइंग इट फॉर सो व्हिच वन यू वांट टू डू फर्स्ट? as you or everyone want, I am okay with both. You are the guest today, so choose one. Okay, like you can share pictures I'll first. just share the screen. Thank you. Yeah. Just a minute. Yeah. Yes, Divya. Would you like to share something on this? Yeah, these were my symptoms. मेरी प्लेटलेट्स बहुत लो थी, तो मुझे ग्रीन स्पॉट्स हो रहे थे और ये मुंह में छाले हो रहे थे, ब्लड ब्लिस्टर्स। या दैट वाज द टाइम आई हैड माय बोन मैरो टेस्ट, जो या नेक पर निशान भी है, आई मीन। Okay. एंड दैट इज द सेम, मेरी प्लेटलेट्स बहुत लो थी, तो मुझे जब ब्लड टेस्ट हुआ तो इतना मार्क हो गया था, Okay. ये जो इस आपके वजह हाथ से। में निशान है वो. हाँ। Okay. And that is a picture of my birthday 2017. For me 2017 28 2 is completely blank, मुझे एक सेकंड भी याद नहीं है, so that is the only memory I have. Oh. So ऐसा नहीं है कि मैंने इसको संभाल के रखा है तो मुझे डिमोटिवेट करती है। हर साल बर्थडे आता है तो आई सी दिस पिक्चर कि मैं अपने उस बर्थडे पे इस कंडीशन में थी और आज मैं अच्छे से हंस रही हूँ, तो ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इसलिए मैंने संभाल के रखी है। Amazing. Yeah, it was during my chemotherapy sessions. Mhm. Yeah. These were the side effects of the treatment you were having. Yeah, I started losing my hairs and Did it ever bother you? no, never. Okay. Like एक incident है, like मैं picture share करने के बाद बताऊंगी। Mhm. This one? Yeah, I enjoyed being bald. Oh. Yeah. Wow. This was when you were taking the chemotherapy? Yes. Mhm. Always smiling. Yeah, dancing on that bed. Oh my God. Okay. So I used to scare kids from this look. That is how I enjoyed this. Mhm. Wow. Okay. Yeah, like I was like, बाद में look मुझे मिलेगा नहीं, तो yeah, why not try some different thing? Nice. Yeah, one more thing, being weird and crazy is what helped me. Okay. Can't believe this is you. Who says you're shy? That is a picture when I got swine flu. Ah, okay. And here So, you yeah. again. Yeah. All recovered, shining bright. Yeah, I have made an album of my journey. Okay. Beautiful. Thank you, Divya, for sharing your memories, beautiful pictures with us. Thank you. It really means a lot that you made all of us a part of your life. We barely know each other from I know you from couple of years, but other people from last couple of months. But it already feels like we have been a part of your life since long. So it's because of the way you welcomed us in your life, the way you welcomed everyone, and made everyone else also comfortable in sharing their journey with you. There are many people who
सेड दैट कि हमें अपनी जर्नी सिर्फ आपके साथ शेयर करनी है. सो एज आई सेड कि दिव्या का कल हमारे साथ में लाइक वर्किंग वाइज प्रोफेशनली लास्ट डे था, बिकॉज शी इज गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज. बट दिव्या सेज कि अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने बोला है कि दिव्या आप जा रही है लेकिन हमें फिर भी अपनी जर्नी आप ही के साथ शेयर करनी है. इट्स बिकॉज द वे यू वेलकम्ड एवरीवन एंड मेक देम इतना कंफर्टेबल कि दे can really understand you, you can really understand them, and very few people are able to do it, and you have done that. So thank you for that, and I'm really grateful for knowing you, your journey, and the way your journey is inspiring many 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 others. So as थैंक you यू were सो sharing मच. something, you said कि मैं बाद में बताती हूँ. What was that? हाँ, सो आप बालों के बारे में पूछ रहे थे कि डिड हेयर फॉल एवर बॉदर्ड मी. सो मैं मेरे ट्रीटमेंट के टाइम भी पुरानी पिक्स देखती थी और अभी बाल वाल लुक भी एंजॉय करती थी. और ट्रीटमेंट के टाइम जब मुझे बाल नहीं थे तब मैं हेयर स्टाइल्स की वीडियो देखती थी, बिकॉज मैं पहले भी देखती थी और पहले भी हेयर स्टाइल्स बनाती नहीं थी और अभी भी देखती थी नहीं बनाती थी. बोथ वर द सेम थिंग, बट इट वाज लाइक पहले बाल थे और अभी बाल नहीं थे. कोई और देखेगा मुझे ऐसा करते हुए तो दे वुड फील कि मुझे है ना लो फील हो रहा है, मैं बुरा मान रही हूँ, मुझे बाल नहीं है. सो आई वॉज नेवर इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी थी, मैं फीचर्स ट्राई कर रही थी. सो मुझे पुरानी कोई फोटो मिली मेरी जहाँ आई हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स एंड दोज हेयर गोज टाइप पिक्चर. सो मेरे लिए वो नॉर्मली थी कि मैं अपनी बाल लंबे बाल वाली पिक्चर देख रही हूँ. बट जो हमारे दिमाग में इमेज होती है कैंसर पेशेंट की कि उनका बाल लुक है तो वो अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं तो वो है ना सैड हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है. तो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि है ना अगर मैं ये वाली पिक्चर लगाऊंगी ये लिख के कि है ना दोज हेयर गोज, तो सामने वाले को लगेगा कि है ना शी इज फीलिंग लो. तो मैंने तो बिंदास वो पिक्चर लगा दी इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्योंकि मुझे फीचर्स देखने थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था इंस्टाग्राम. सो मैंने लगा दिया ना हाई एड मैसेजेस की दिव्या कि आप अपसेट क्यों हो रहे हो, आपके अच्छा है ना बाल नहीं है, शैम्पू नहीं करना है, कंडीशनर नहीं करना है. मैंने कहा, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं. फिर आई गॉट टू नो कि ओ क्या है, वो कैंसर पेशेंट. तो सबके लिए मुझे मेरा बाल लुक है ना अपसेट करना चाहिए. अरे सो दैट वाज रियली फनी मोमेंट फॉर मी. और मेरा ट्रीटमेंट के टाइम है ना हमेशा ऐसे होता था, शिवाजी द बॉस मूवी है तो मेरा हमेशा हाथ ऐसे होता था सिर पर, मैं ऐसे वैसे बजाती रहती थी. और बच्चे, मैं जब बिल्डिंग में थी रेडियोथेरेपी मेरी हो रही थी तो हमने अहमदाबाद में फ्लैट ले रखा था, तो मैं ना खिड़की के एक ही कोने में बैठती थी बिकॉज मोबाइल के नेटवर्क वहीं आते थे. तो वहां पर नीचे बिल्डिंग में बच्चे खेलते थे. तो मैं उसी कोने बैठती थी और उस टाइम तो रेडियोथेरेपी के मार्क्स भी थे. तो बच्चे कोई भी ऊपर देख लेता है तो दे वर लाइक लिटरली स्कैर्ड एंड आई वाज लाइक मैं आके दिखाती थी स्कैर देम मोर. दैट इज हाउ आई एंजॉयड. Oh, very funny. Usually when we hear the word cancer, for many people it's still scary because it's the first time they are entering into this new world of cancer. But you have gone through it, and that time also you were smiling, laughing uh, during the treatment. After the treatment, today also you are smiling and laughing. So this circle has become a like a A circle laughing of circle. laughter. Yeah, right. Yeah. So it's just your aura which is changing the flow of healing circle. And I don't Yeah, I want to think tell you what all we are going to discuss because even I did not know. I Okay. think Anju ma'am want to share something. She's raising her hand Yes. from so long. Yeah. Sorry. Can you please unmute? Yeah. अ, दिव्या जी, आप I मूवी बनाइए, क्योंकि ओरिजिनल मूवीज में तो सब गलत बताते हैं कैंसर के लिए कि उनका एंड अच्छा नहीं होता. Right. आप मूवी बनाइए, किसी के लिए भी बनाइए, आप अपनी बनाइए, किसी की भी बनाइए प्लीज. yeah, like yeah, someday. Uh, Thank you. And that is what I also not like क्योंकि मैं भी जब कैंसर डायग्नोज हुआ था तो टीवी में एड्स हम सभी देखते हैं कि है ना मूवी से पहले एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कैंसर हुआ है एंड बहुत ही लो और ऐसे एड्स आते हैं, पर दूसरी साइड कोई नहीं दिखाता है. सो हमें कैंसर पोर्ट्रे करने का तरीका अलग करना चाहिए. yeah. Right. And I think you should invite all those people in this healing circle and meet all the warriors and the conquerors and winners we have here. कि और वो पूरा लोगों को भी कि it's not scary anymore and very much treatment is possible, cure is possible,
And yeah, so thank you for being an example, Divya. Thank I you. हिंदी will मूवीज में open the कैंसर का circle डर for, बिठा रखा yeah, है, बोलिए. हिंदी Yes. मूवीज में कैंसर का डर बिठा रखा है, इसलिए भी Yes. पेशेंट को नाम सुनते ही, सारे रिलेटिव्स को नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है. राइट. अगर मूवी में किसी को भी मारना है तो उसको कैंसर दे दो, ऐसे हो गया है. And that is very really like wrong. Yeah, it is. So I will open the circle for other people to ask anything they want to ask Divya, starting from Mehul. Hey Divya, nice to see you. As always. No questions to ask. You have. I just want to listen more and more from you, and it's really nice. एक बात सिर्फ बतानी थी कि which I'm definitely all the people here must have experience कि जहाँ पे when the medicine stop working, the blessings start working. So I am sure you have collected so much of blessings, and they're going to help you in such a lot of way कि आपको ना कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में. जो भी आनी थी Yeah, सब I आपको always. खत्म हो गया आपकी सब प्रॉब्लम्स. So yeah, keep collecting blessings, and it's going to help you tremendously. You're a very noble soul, and I've met very few people like you, and I'm sure all are blessed to be a part of this group and listen to you. And yeah, it's a wonderful morning for me. Thank you. Yeah. Thank you. And I also believe that, बोलो. yeah, like more than my positivity and smiling face, blessings is what, like, blessings की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, सबकी blessings की वजह से. Yeah, great. I was very excited for this circle. मैंने दिव्या को बोला डोंट वरी, आपका सर्कल तो बहुत पॉपुलर होने वाला है. मैंने तो दिव्या को मैसेज किया था कि मुझे फोन करना, if I'm not there, don't start without me. Let me be there. Okay. And I was too nervous, like मुझसे कैसे होगा. Like I always say डिम्पल दी मुझे स्टेज फोबिया है, तो मुझे आना इंटरव्यू का काम मत दो, प्लीज मत दो. And she was like, no Divya, you can do this. So I think मैंने इतने इंटरव्यूज लिए, and that is why I could do this. So thanks to डिम्पल दी for this. अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ. बिल्कुल. मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं आपने. आपका भी ले लेंगे. बहुत अच्छा लगेगा. मैं तो और आपसे डबल हूँ उम्र में, और एक अभी जरूर लीजिएगा मेरा इंटरव्यू. आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा. जी बिल्कुल. अतुल जी, आप शेयर करना चाहेंगे? Yes, Divya, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm also good. It was very, very inspiring. और मेरे को जो बहुत अच्छी चीज लगी वो लगी कि हाँ, जो बीमारी है और जो ट्रीटमेंट है उसकी एक्सपायरी डेट, that's a new thing and a new way to look at this thing, and I think very, very good point of view. So Thanks. as always you are very inspiring, smiling, और जो आपने अभी वायरल करी है अपनी स्माइल इस ग्रुप के अंदर, सर्कल के अंदर, that's amazing. पूरे सब लोगों को मैं देख रहा हूँ कैमरे में, everybody is smiling, so keep going and make people happy as you do. Yeah, that is what I love. Right. Yeah. Like, yeah, I always say I have an adrenaline rush to make everyone around me happy. Yes. That's very, very inspiring. Utsav wants to say something. Utsav, I'm asking you to unmute. आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस, मैंने एक्चुअली दिव्या को उसकी जर्नी मैंने कई बार देखी थी और उससे मैं इंस्पायर हो चुका हूँ. शी नोज मी वेरी वेल. बट मैंने पता नहीं कोट कहीं सुनी थी कि किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल. तो मतलब उसने कैंसर को वैसे भी किल करके सक्सेस पा ली है और उसने कैंसर को कहीं ना कहीं दबा दिया है, जो स्माइल उसने दिखाई है. एंड दिव्या मेरे लिए तो लाइक उसको रहता है वॉरियर मेंटालिटी. अगर किसी ने मैंने देखी है कम एज में तो दिव्या हैज दैट वॉरियर मेंटालिटी. एंड उसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी जर्नी के टाइम पे सबको खाली बताया हो कि आई एम फाइटिंग, बट उसने उस चीज को कंटिन्यू किया था और बाकी सबको उसने हंसाया है. जैसे हमने कई बार उसको हंसाया था, उससे मिले थे, देखा था कि एक छोटी सी गुड़िया है दिव्या, छोटी सी लड़की, जो सबको अपने लिए नहीं. और मेरे को पसंद है एक चीज की सबको जो मुफ्त में मिला है लाइफ, उसकी कदर नहीं है, और उसने तो उस चीज के लिए लड़ा है, तो उसको कितनी कदर होगी उस चीज की. और बहुत बढ़िया है. और दिव्या की स्माइल ऐसा लगता है ना, अभी वो जैसे वो वीडियो वायरल होता है ना किसी का स्माइल वाला,
स्विगी वालों का, वैसे दिव्या का वीडियो तो वायरल करो सच में। और ये स्माइल ही कैंसर को हराएगी डेफिनेटली, बिकॉज ये स्माइल ही बहुत बढ़िया चीज है। एंड सक्सेस पा ली है उसने कैंसर पे, और बाकी लोगों को वो इंस्पायर करी है। सो आई एम प्राउड ऑफ हर एंड आई एम ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं मैं उसे जानता हूँ, उसकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि सिंपल लोगों से मिलता है, बट शी हैज उसने अपने आप को एक लेवल अप कर लिया है, और उससे हर रोज सीखने को मिलता है। इंसान से सीखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है। पर मुझसे छोटी होके भी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो आई एम प्राउड ऑफ हर एंड थैंक यू आप सबको कि ये चीजें मुझे शेयर करने को मिल रही है। सो आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Bhaiya. He's one of the clowns from Clowning Group. Okay, thank you so much Yeah. for sharing. वेलकम मैम। Wow. जब स्टोरी सुनी दिव्या की तो बहुत छोटी उम्र में इन्होंने किया, तो मतलब मेरे आंसू रुके नहीं थे। बहुत हिम्मत है इस बिटिया में, बहुत। गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you. Rohit. Yeah, it was great to hear from Divya. I think first time I personally heard so much from Divya. Otherwise, I've always read what she has written. So especially, I think there was one PDF that you wrote, if I remember. And that Yeah. was the one PDF which I read, and I personally got to know so much about even blood cancer and you. And that was really, मतलब मेरे को personally बहुत सारे myths थे blood cancer के बारे में. And when I read about your story, it was really motivating and inspirational. But you should definitely share some tips about your smiling face. Because मेरे को हमेशा personally मेरे को हमेशा ये feedback मिलता है, मतलब I'm very highly emotional person, but I'm very poor with expressions. I can't show any expressions of any of the emotions. Yeah, sometimes should definitely give some tips. But I think your purpose will definitely be always be to help others only, because in this role also you were like helping others, and even the role which you are going for your higher studies. So even that will be where you will be hearing other stories and then guiding them. Because वो बहुत interesting role होता है, मतलब because one of my flatmates was in that role, and we used to hear a lot of stories, मतलब whatever he could share. So yeah, that will be always be good. All the You best. have been also working together, like Rohit, you have been volunteering with us. Yeah. अपने दिव्या के साथ में उस फ्रंट पे काफी collaborate किया है. So how was your experience working with Divya? It was great. मतलब she मतलब उसने काफी कुछ एकदम स्मूथ कर दिया था बीच में, लाइक मतलब मैं काफी अलग अलग जगह से काम कर रहा था. देन शी ब्रॉट लॉट ऑफ स्ट्रीमलाइन कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इस अकाउंट से कर लेना, यू कैन टेक फॉरवर्ड. तो दैट वाज रियली हेल्पफुल. मतलब तो कहीं ना कहीं दिव्या से भी इंस्पिरेशन मिली थी कि यस, अगर इफ शी इज एबल टू टेक सो मेनी इंटरव्यूज, हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं से, सो दैट हर वर्क बिकम्स इजियर. तो या एक दूसरे से इंस्पिरेशनल मिलके ही आई थिंक वी वर्क फॉर दिस कॉज. Yeah. Even your contribution, Rohit, it's very, very helpful because we get many patients जो stories सुन के inspire होते हैं. And for somebody in breast cancer group, उनकी mother को cancer है और brain metastasis है. So he has been asking कि I want to connect with others in the similar who has breast cancer with brain mets, क्योंकि मेरी मदर को है. एंड आई शेयर लॉट्स ऑफ स्टोरीज विद हिम. yesterday only I shared like 7-10 stories and he was like really happy कि हाँ ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मेरी मदर भी ठीक हो सकती हैं. So it's all of you who are contributing to these journeys and it's inspiring many others who are going to this journey. So thank you Rohit, thank you Divya. डेफिनेटली वो एक स्टोरी होती है. मतलब इवन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, व्हेन आई अंडरवेंट सर्जरी at the age of 11, तो when next day जब वो फिजियोथेरेपी के लिए आए, he brought one of his old patients who just came to visit him, and he then told me कि नहीं ये होता रहता है, मेरी ऐसे 3-4 बार सर्जरीज हुई, ये हुआ. एंड वो चीज़ मेरे को हमेशा से याद रहती है, बिकॉज यू ऑलवेज रिमेम्बर कि हाँ ये चीज़ सही हो जाती है, क्योंकि उनके भी हुई थी एंड ही इज डूइंग वेल नाउ. तो यू ऑलवेज स्टोरीज हमेशा इंस्पायर करती हैं कहीं ना कहीं. Right, thank you. प्रणव जी.
I would say oldest and youngest member both together. Meenakshi and Divya. Dibba, I pay my humble respect to you. Thank you. My humble respect for you. I am actually speechless. I can't say anything. Just recently I had connected. You connected me through. You took my interview, and on that day I understood what you are. And today I am speechless. Okay, God bless you. And your soul, your heart is very open. You're having open heart, and with this open heart, you can make others smile, and you yourself is an inspiration. You have not got inspiration from others. You are yourself inspiration, and the society, the community need you for their support. This much. Thank you so much. Thank you so much, Pranabji, for sharing your blessings for Divya. We all are speechless. Usually, other circles, I ask a lot, I speak a lot, but I don't know what more to ask Divya. Rajendra ji? Hello. Yes. Hello. Yes, Rajendra ji, we can hear you. Would you like to share? Yes, I would like to say there are two, three things I want to say. First of all, as early as possible, share the video link of this story, because there are many cancer patients who will definitely be motivated to listen to Divya's thing. And to Divya, I have to say, एक तो उसने बताया कि मेरे को डिफरेंट टाइप की हंसी है, नर्वस हंसी, स्ट्रेस हंसी. तो अगर एक आध दो एग्जांपल दिखा दे तो हमें भी पता चले कि नर्वसनेस में हंसी कैसे आती है. Third, you have a very charming smile, and I tell you also, I have already spoken to you earlier. You have got a very positive era from the face reading, which I have been doing for many people. I have already conveyed to you and told you that you have now a wonderful future. And remember, wherever you go, I do not know, you are going for some course, that is what spoken, but I didn't know where are you going, or are you going out of country? No. I'm just like preparing myself for further studies in India only. Okay, in India only. So means you are not going to be cut off now, because we would like to have you and talk to you always. No. And one more thing, I would like to talk to your proud parents sometime, because they also must be very fortunate to have a daughter like you. So I would like to compliment sometime, or would like to talk to you, and I also would like to have their experience, how they are on this call. Can you please introduce them? Yeah, Papa ji, Mummy ji. You just call them. They would like to see them. मैं unmute करती हूँ. Like they are Ashok Sharma. Aha, okay. Sorry, just yeah. Ashok ji, मैं आपको unmute करने का try कर रही हूँ. We will be blessed to see them. That's what you like to see. Please. अशोक जी, आप unmute करेंगे खुद को? मैंने आपको request भेजा है. Yes. नमस्ते. आपके फादर हैं दिव्या? हाँ, पापा है, मम्मी, भाई सब है कॉल पे, आई थिंक. बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी बेटी, और मतलब सब लोग बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं दिव्या से. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं कुछ, आपका भी बहुत हेल्प है इसमें, आपका बहुत सहयोग है. आपने इसके टैलेंट को पहचाना है और इसको इतना मतलब आगे बढ़ाया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
नहीं, दिव्या ने जब अपना स्टोरी पहली बार जब बताया था, और तब ऐसा लगा था कि इतनी छोटी सी उम्र में वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से निकली है, और मुझे नहीं पता उसको कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आती है, इतनी हिम्मत आती है, वो हमेशा स्माइल करती रहती है। और जब आज जब उन्होंने ये बोला कि मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि मुझे कैंसर हुआ है और किसी और को नहीं हुआ है मेरी फैमिली में। उसको बहुत दुख होता है सोच के कि आप लोग ये चीज कैसे उस वक्त सहन कर गए, आपको कितना दुख हुआ होगा जब उसको कैंसर हुआ था तभी। एंड आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्ट रहा होगा इतनी सी उम्र में उसको ये सब चीजों से निकलते हुए देखते हुए। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपने कैसे उस हिम्मत रखी, और दिव्या का तो सपोर्ट था ही, बट आप लोगों ने कैसे इस सिचुएशन से आप निकले? मम्मी का बहुत सपोर्ट था मैडम। अच्छा, ये सब चीजें मम्मी से आई है, सब इनमें मम्मी के सारे गुण हैं इनमें। अच्छा। तो मम्मी जी आप कुछ शेयर करेंगे? ये हमारे सामने थी, वही बहुत था कि अब कुछ नहीं होने वाला, आज है जो है ठीक है। बट आपको भी कुछ डर तो लगा होगा ना? इसका चेहरा देख के मेरा सारा डर भाग जाता था। अच्छा। नहीं, अब मुझे समझ आ रहा है स्माइल कहाँ से आई है। मैं इसी को अपना गुरु बना लिया था। बहुत ही काफी बहुत हिम्मत वाली है, बहुत करेज दिखाई है इसने। उस वक्त तो दिखाई, लेकिन आज भी वो उसी स्माइल से, आपको तो पता है वो घर में कितने लोगों का वो इंटरव्यू लेती है, कितने लोगों से बात करती है, क्वेश्चंस पूछती है, लिखती है उनकी जर्नी। और आई एम श्योर वो डिफिकल्ट रहा होगा दिव्या के लिए भी, बट थैंक यू, आपने भी उसको इतना सपोर्ट किया। और एज अ पेरेंट्स आप दोनों के ऊपर बहुत मुश्किल होगा आप दोनों के लिए भी वो पूरी जर्नी से निकलना, बट एक दूसरे का सपोर्ट आई थिंक था आप दोनों के साथ में, और इसके लिए वो निकल गए। और जब दिव्या ने बताया कि मैं ब्यावर से हूँ और ब्यावर मेरी मम्मी का ननिहाल है, तो मुझे बहुत प्राउड होता है सोच के कि अरे वाह, हमारे ब्यावर की बेटी ने। या आप दिव्या के लिए कुछ शेयर करेंगे? नहीं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ऊपर वाले का और सभी की दुआएं और आशीर्वाद है कि आज ये हमारे सामने और यहाँ बैठी है। हाँ, वो तो है, हम सबके लिए ब्लेसिंग है, वो सबके लिए आशीर्वाद है कि वो हमारे साथ में है। और बहुत लोगों को दिव्या ने इंस्पायर किया है। मतलब जब भी हम दिव्या की जर्नी के बारे में सोचते हैं या फिर दिव्या के बारे में सोचते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं कि शी इज वेरी डिफरेंट, ब्लेस्ड चाइल्ड है वो। बस मैं इतना ही बोलूंगी दिव्या के लिए। आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो दिव्या आज है आप लोगों की वजह से है वो। और आप लोगों ने जो किया दिव्या के लिए, जो भी हम आज दिव्या को देखते हैं, जो उसकी स्माइल है, जो कुछ भी है, वो सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहेगा दिव्या के पेरेंट्स को? प्रणब जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस राजेंद्र जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। उसको बस कॉम्प्लीमेंट देना कि इतनी अच्छी डॉटर, इतनी फॉर्चुनेट डॉटर है, एंड आई वुड लाइक टू टेल देम that she has a wonderful future now, and that is my prediction, astrological, facial, in all way, and she'll continue to remain charming and smiling, and she will also make others smile and charming, and uske parents ke liye to ye she will be a greatest asset in their life. Wow. My humble respect and salute to Divya's parents, brother, and all the support. Hats off. Thank you. And this is a pride for the parents to have such a daughter, a blessing daughter, and smiling all the time. This is unique smile, and which is inspiration to us all. Thank you. Thank you. Thank you. आप दोनों के कारण ही दिव्या ने ये जर्नी इतनी अच्छी तरह से निकाली। आप दोनों की स्माइल के लिए दिव्या ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी स्माइल नहीं जाने दूंगी। तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, आपकी स्माइल जो दिव्या को हमको नजर आ रही है। और अब मैं चाहती हूँ, वास्तव में मैं चाहती हूँ कि दिव्या तुम एक
मूवी बनाओ जो पूरी दुनिया को दे इंस्पिरेशन। या एक्चुअली हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। वो तो है, छोटी बच्ची है, वो अपने आप में स्ट्रगल कर रही है, वो आपको देख के स्माइल कर रही है, तो नेचुरली आप उसके सामने स्माइल करके ही जाओगे। भले ही आप अकेले में कहीं रोते होंगे पर इसके सामने स्माइल करके ही जाओगे। इतनी हिम्मत इस बच्ची ने दी होगी आपको। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने दिव्या को ऑब्वियसली बचपन से देखा है, तो क्या चेंजेस देखा पहली वाली दिव्या में और अभी वाली दिव्या में? दिन और रात वाला चेंज है, जमीन आसमान का फर्क है मैडम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और आपसे मिलने के बाद तो ये फर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा चेंज हुआ है ना? कहीं ना कहीं आपने इसके टैलेंट को निखार दिया, एकदम पहचाना आपने। मैं कल दिव्या को एक स्क्रीनशॉट भेजी जुलाई का कि है दिव्या हमारे यहाँ पे एक ओपनिंग है, तुम आना चाहोगी क्या? मैं दिव्या के पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ सर, सर और मैडम, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ फर्स्टली कि योर पेरेंट्स ऑफ सच अ ब्रेव डॉटर, एंड मैं खुद एक फादर हूँ, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मतलब मेरा बच्चा भी है अभी 15 साल का, तो वो जब बीमार होता है तो मुझे कितना टेंशन आता है। तो आप तो मतलब किसमें से गुजरे हो, ये सोच के ही मेरे देखो बाल खड़े हो गए कि मतलब आपके पेशेंस को, आपके मेहनत को और आपके कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इट इज नॉट इजी एज पेरेंट्स टू सी अ किड सफर थ्रू ऑल दिस, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं है, ना उसको हारने दी है। तो बेसिकली जो उसमें है वो सब आपसे ही आया है, एंड सपोर्ट सिस्टम जो आपने उसको दिया है वो शी इज ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक यू। और सही में मतलब बिहाइंड द सीन जो केयर टेकर होते हैं वही हमेशा ज्यादा वो तो मतलब चलो वो 2 दिन बेहोश थी, लेकिन आप पे क्या वो 2 दिन कैसे गुजरे रहेंगे थे। मेरे आंख में देखो पानी आ गया, मैं बड़ा इमोशनल हूँ, सॉरी, लेकिन सल्यूट आपको। और आई एम श्योर कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपने बहुत कुछ अच्छा किया होगा तब आपको ऐसी डॉटर मिली होगी। मतलब यू आर वेरी ब्लेस्ड, ये आप हमेशा आपको खुशी रखेगी, ये मैं एकदम 100% बोल सकता हूँ। थैंक यू सर। I am blessed to have them as my parents. इसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं जुड़ी है, ये पूरे परिवार की लाडली है। That is why I say मेहुल सर सॉरी, मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ इस वर्ल्ड में। हम या देखो ये ईगो हर्ट कर दिया आपने, मतलब हम दोनों में इसी बात पे फाइट होती है मेहुल सर और हम ऑफ द स्क्रीन फाइट करेंगे, लेकिन या अभी यहाँ पे तो आप जीत गए, मतलब या तो दिव्या के मम्मी पापा से मेरा क्वेश्चन है, दिव्या का फेवरेट फूड क्या है? क्या फेवरेट फूड क्या है? फूड अच्छा मेरा फेवरेट है ना कुछ नहीं है, मैं शुरू से सब खाती हूँ। घर का बना लाइक जो सब। हाँ दिव्या आपके पेरेंट्स से क्वेश्चन है ये। कभी भी परेशान नहीं करा मैं। स्पेशली सभी जो लाके खिला दो वो खा लेगी, कोई डिमांड नहीं रहती है। दिव्या को खाली टाइम में क्या करना अच्छा लगता है? लिखना, ड्राइंग बनाना। ओके, कुछ कंटिन्यू लिखते रहती है, कुछ न कुछ तो लिखना ही है। आपको दिव्या पे कभी गुस्सा आता है? मैंने तो स्पेशली इसको अपना गुरु बना लिया है। बोलते हैं माँ होती गुरु, पर मैंने इसको अपना गुरु बनाया। दिव्या उसके बाद में तो जब भी नहीं है। एक बात पूछेंगे दिव्या का माता का। पूछिए। माता जी, आपका गोद में जब दिव्या सीट में अनकॉन्शियस थे आपका गोद में, तो आपका क्या अनुभूति हुआ, दैट इज फीलिंग्स हुआ? 2 बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब मुश्किल है सरवाइव करना। तब भी
तब भी आपका स्पिरिट है ना, स्पिरिट बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पिरेशन है। सब ये ईश्वर की ये सब लोग नहीं रुक सकते हैं। स्पिरिट का ले आना बहुत, एज ए फादर, एज ए मदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू या दिव्या के ब्रदर भी अगर वो है यहाँ पे सर्कल में, तो luckiest brother in this world to have a sister like Divya. हाँ, सभी पूरी फैमिली बैठी है मैडम। अच्छा, अरे वाह। So hello everyone, thank you सर्कल में हम सबके साथ में रहने के लिए। आप सब लोग बहुत लकी हैं और दिव्या भी बहुत लकी है कि आप सब एक दूसरे के साथ में हो, और इस जर्नी में फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज दिव्या यहाँ पे हम सबके साथ में है, आप सबका बहुत बड़ा रोल है उसमें। और मैं सब कैंसर पेशेंट से, सारी फैमिली से, सारे केयर गिवर से यही कहना चाहूंगी कि जब भी कभी ऐसा हो फैमिली में, हमेशा एक दूसरे के साथ में रहना, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग होती है, वो जो मेडिसिन होती है फैमिली के लव की, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। थैंक यू आप सबको। कोमल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आई विल अनम्यूट यू। यस कोमल, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मुझे एक्चुअली ये कहना था, इसने मेरी स्टोरी कवर की थी दिव्या ने, और आफ्टर दैट वी बिकम सो ग्रेट, यानी कि फ्रेंड्स बन गए हम लोग एकदम। और मुझे अंकल आंटी को कहना है कि अंकल आंटी, जो यानी कि आपने जो वैल्यूज दी है उसको, उसके लिए आप लोगों को हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आजकल के जमाने में, इतनी ट्रूथफुल और इतनी प्यारी, इतनी ब्रेव एट हार्ट। तो आई बिलीव कि है ना, आप लोग भी वही गुड एट हार्ट है जो आपको वैल्यूज उनको दे पाए। और Sorry, I can't help it. सॉरी, आई थिंक उनका कैमरा अटक गया। So Divya, pampered one today here, always. Always. So after hearing everyone, how कैसा लग रहा है आपको? How are you feeling? I'm like just so blessed to have everyone in my life. That is why I always say I am the most loved person in the world, and I am loved by the world. So अभी जो भी सब यहाँ है, I just call them family. दिव्या, जैसे आफ्टर ट्रीटमेंट अभी आप ओके बहुत खुश हैं, सब कुछ है, जो हम लोग, आपको भी पता है कि द मेन प्रॉब्लम विच वी फेस इज, जो लोग इस जर्नी से अभी निकल रहे हैं, जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए because of the side effects and everything of the frustration and the depression of the treatment, many other things, they want to be like you, but somehow they are not able to during the treatment. So can you please share something about that? Yeah, like आप अगर इस जर्नी पर हो तो आप किसी और सर्वाइवर से बात करो। जितना आपको इंस्पिरेशन सर्वाइवर दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। लाइक डॉक्टर्स आपको मेडिकल पार्ट बता देंगे, न्यूट्रिशन पार्ट बता देंगे, बट जो इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट है जर्नी का, वो सिर्फ एक सर्वाइवर ही बता सकता है। मैं भी लव इज कैंसर के थ्रू ही एक सर्वाइवर से कनेक्ट हुई थी, अभिषेक त्रिपाठी, आई थिंक ही इज ऑन द कॉल। सो उस टाइम मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम सर्वाइव कर चुके हैं तो हमें मास्क कब तक पहनना है, ये कब तक फॉलो करना है। लाइक मैंने पूरा क्वेश्चंस का पिटारा उन पर डाल दिया था। सो अगर सब पेशेंट सर्वाइवर से कनेक्ट करने लग गए तो उन्हें एक रे ऑफ होप मिल जाती है। Right. So that is the first thing like they can do to be positive. Okay. Yeah, that's right. And आपने जो राइटिंग शुरू किया था कुछ साल पहले, and I remember जब वो रोहित PDF की बात कर रहे थे, तो तभी मैं आपको उतना अच्छे से नहीं जानती थी। और जब 2 साल पहले जब आपका स्टोरी आया मेरे पास में, तो यूजुअली सबका 1-2 पेजेस का आता, और दिव्या के 30 पेजेस थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे डालूं। So अमल, और वो मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा था जबकि।
तो अमल वेबसाइट पे अपलोड करते थे, तो अमल बोला कि डिम्पल कैसे डालूं, मतलब 30 पेजेस, समझ रहे हो ना आप? ने बोला इसको उसको 2 पेजेस का समरी बनाओ। डिम्पल पॉसिबल ही नहीं है बनाना इसका समरी, ये ऑलरेडी समरी बनी हुई है। so that was very funny। फिर मैंने बोला एक काम करो, आप थोड़ा सा डालो, उसके बाद पीडीएफ ही अटैच कर दो उसके साथ में। so and then we have been in touch। आपने बहुत सारी अपनी glimpse of your journey you shared with me on WhatsApp आपने शेयर किया। so आपको I'm sure आप पहले से राइटर नहीं थे, लिखने का पैशन आपको पहले से नहीं था, ये ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यू गॉट दिस, so how did it help you? मैं पहले लिखने में कभी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि जब लोग ये बताते हैं कि है ना भी लव राइटिंग, तो वो लिखते क्या है। आई वाज लाइक सब है ना रोज जनरल लिखते हैं, सब बोलते हैं हमें लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन लिखते क्या है पर वो। सो जब मैं इस जर्नी पर थी तो आई एम द पर्सन, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मुझसे जो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इमोशनली वो शेयर नहीं होता है सामने वाले से इतना इजीली। सामने वाले स्पेस भी देखा तो आई कैन डू दैट इजीली, सो इसलिए मैं राइटिंग में आ गई थी। तो मैं जब इस जर्नी पर थी तो खुद को नोट्स लिखती थी कि डियर सेल्फ आई नो इट्स हार्ड बट दिस टू शैल पास, और ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखती थी रोज अपने को। मतलब रोज तो नहीं, जब भी मुझे थोड़ा इमोशनल फील होता है, फिर लगता है कि इट्स टू हैवी एंड इट्स टू गेटिंग लाइक टायर्ड एंड ऑल, तो तब लिखती थी। और मैंने कैंसर को एज अ पर्सन इमेजिन किया था। आई यूज्ड टू टॉक टू हिम कि जब बहुत हैवी हो जाता था कि यू नो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, तो आई वाज लाइक बेगिंग कि ओके थोड़ा तो ब्रेक दे दो, अब कितना होगा। एंड आई वाज लाइक ऑल हैप्पी एंड अच्छा मूड है और बहुत फिजिकली भी अच्छा फील कर रही हूँ और मेंटली भी अच्छा फील कर रही हूँ, तो आई वाज लाइक चैलेंजिंग, ओके और जो लाना है ले आओ। और वो भी सब मैं लिखती थी अपनी डायरी में, और लिखती मोबाइल में लिखती, बहुत सी बार डिलीट कर लिखते लिख कर किया ना कोई पढ़ ना ले, बिकॉज दे वुड फील कि यार ये पूरा इमोशनल लिख रही है तो कोई और पढ़ेगा उसको लगेगा कि इतना टेंशन ले रही है ये। बट मुझे पता था मैं थोड़े टाइम के लिए इमोशनल हूँ, मैं लिख दूंगी और वापस अब नॉर्मल हूँ, जैसे हंस रही हूँ हो जाऊंगी। सो सारा पेपर पे उतारना बहुत ज्यादा हेल्प किया है मुझे। और अभी भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ अपसेट हूँ या कुछ भी है, इवन हैप्पी भी हूँ, तो मैं सारा पेपर पे लिख देती हूँ बस। What books you have read and what are you reading now? Because I would like to know the way in which you have expressed today yourself so clearly, concisely, precisely. So you must have some background also, ne? Some good books, some good thinking. So any idea? So I will also get some idea. like मैं नोवेल्स से पढ़ती हूँ ऑब्वियसली, बट मैंने इतनी नहीं पढ़ी है। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी नोवेल्स, तो पढ़ने का भी सीन यही है, जब लोग बोलते कि है ना हमें पढ़ना पसंद है, वी लव रीडिंग, तो पहले मेरे दिमाग में ये आता था कि ओके यू लव रीडिंग, बट आप साइंस की बुक्स वगैरह कितना पढ़ सकते हो, आप पढ़ते क्या हो। मुझे नहीं पता था कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और ना हीलिंग पर, इन सब पर बुक्स भी होती है। आई वाज नेवर इनटू द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। सो जब मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बैठी हूँ, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, आई कैन बी लाइक दिस, लाइक पूरे दिन खाली बैठना। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि अब मैं पढ़ूंगी क्या। तो मैंने नोवेल्स थोड़ी सर्च की तो कुछ अच्छी मिली, और उसके बाद यू नो वी से यूनिवर्स ऑलवेज हेल्प्स अस। तो मैं यही बोलती हूँ कि ना यूनिवर्स को पता था मुझे कौन सी नोवेल्स हेल्प करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो मुझे अपने आप वो नोवेल्स मिलती गई, लाइक यू कैन हील योर लाइफ और मॉन्क द सोल्ड हु सोल्ड हिज फरारी। तो मैंने इतनी नोवेल्स नहीं पढ़ी है, बट हाँ उन्होंने बहुत हेल्प की है। और ऐसा है कि मुझे आगे से अपने आप वो नोवेल्स मिलती गई है जो मुझे हेल्प करेगी बिना मेरे मांगे या बिना सर्च करे। आई मीन Good. Thank you. And thinking, so it's like my upbringing, so that credit goes to my family. Yeah. Divyaraj, would you like to share something? Divyaraj? He is also one of the clowning family. Okay. कहाँ पे गए वो? I think you were just here. I'm in library, so I can't. Okay. You can only hear. So great. और कोई दिव्या के लिए कुछ शेयर करना चाहेगा? Okay. दिव्या, अभी आपने बोला कि आपको वो बुक्स मिलती गई बिकॉज यू आर ए पॉजिटिव सोल, और इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्स चलती हैं, तो जो आप सोचते हो वो आता जाता है। Yeah,
And I always believe कि universe always help us. It's just we need to notice. Like there were problems, many problems. Ovarian cyst हुई, बहुत बड़ी cyst थी. But at least it got twisted. तो हमें पता पड़ा. अगर वो twist नहीं होती तो अंदर ही बहुत कुछ हो जाता या maybe poison फैल जाता. तो थी प्रॉब्लम बट देयर वाज ऑलवेज अ वे टू कम आउट ऑफ इट. और यूनिवर्स ने हमेशा हेल्प किया है और हमें कभी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम कैसे बाहर निकले. कैंसर हुआ बट इट गॉट डायग्नोज एट अर्ली स्टेज. इट डिडंट गॉट मिस डायग्नोज. बाकी बहुत से का होता है कि है ना स्टेज 4 पर डायग्नोज होता है और बहुत सी बार डेंगू का ट्रीटमेंट हो गया, 3-4 और दूसरी चीजों का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद डायग्नोज होता है. बट या आई एम ग्रेटफुल कि ठीक है जो हुआ बट इतना सीवियर तो नहीं हुआ ना कुछ भी. सबसे तो लाइक मेरा कुछ भी नहीं है. लाइक grateful for everything. I always say thank you cancer and grateful for everything. There's always two ways to look at anything, and you just changed the perception and looked at the other beautiful part of it. So that's the beauty you have within you, that you always look at the positive sides of the things. कि हाँ cancer हुआ तो क्या हुआ, जल्दी timely detect तो हो गया. और whatever hardships you have faced in last 4-5 years, I think today what you are is because of the hardships you have gone through, and with family support and everything else. So whatever I say, I always fall short on words if I talk about you. So deep gratitude, Divya, for being with us in any aspect and every aspect जो आपने impact लाया है सबकी life में, be it your family members, be it this healing circle for extended community or extended family, be it at Zen Onco.io and Love Heals Cancer, and many other things what you are doing. It's just beautiful, it's wonderful. And 3 years ago I did not know कि आज relation इतनी strong हो जाएगी और आज हम इस यहाँ पे सर्कल में एक ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट करेंगे एक दूसरे के लिए. मैंने बहुत लोगों को कैंसर की जर्नी से निकलते हुए देखा है, एंड एट सच अ यंग एज एज योर्स इज, आपने जिस ब्रेवली पॉजिटिवली आपने उस जर्नी से आप निकले हो. नॉट मेनी स्टोरीज आई हैव सीन लाइक दिस. सो योर्स इज द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन दैट यस, आप ट्रीटमेंट के साथ में भी आप हंसी खुशी निकाल सकते हो. And we have many 4th stage winners here. So yes, 4th stage का भी treatment possible है. मुझे हमेशा एक question आता है जब मैं patient से बात करती हूँ कि डॉक्टर ने बोल दिया है 4th stage है, कुछ नहीं हो सकता है. Everybody is worried in the family, and I tell everybody कि, and in fact परसों ही I saw PET scan, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ट्यूमर से बॉडी में, scalp, abdomen, lungs, liver, पूरा abdominal area, pelvic area, skeletal system में. मतलब the person got diagnosed just 1 week ago. 4 ही दिन हुआ. इनफैक्ट बायोप्सी का रिजल्ट भी कल आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इतना लेट डायग्नोज हुआ कि ऊपर से नीचे पूरा ही कैंसर है. So I was talking to the daughter and she was very worried. तो मैंने वही बोला कि yes, it looks bad, but then I know many survivors, so I can't lose any hope here. मैं होप लूज कर ही नहीं सकती हूँ कि मैं रोज उनसे बात करती हूँ. सो मुझे पता है कि देयर इज ऑलवेज अ होप. मिरेकल्स भी होते हैं, बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल होप. जो बहुत सारे एडवांसमेंट भी हो गए हैं ट्रीटमेंट में, और जिन लोगों को यहाँ पे ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था 2-3 महीने है, वो हमारे साथ में इतने सालों से है. सो यू आर और द पीपल, आप सब लोग जो बाकी लोगों को होप देते हो, and you have no idea how your stories are creating impact, because we all talk to hundreds of patients every day. And जब मेरे पास कोई भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं और दे आर वेरी वरिड, और क्या करें, एंड यू नो डॉक्टर्स ने मतलब आज ही बोल दिया है कि हाँ इट इज एक सिग्नेट सेल रिंग सेल कार्सिनोमा होता है, जिसमें इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि उसमें आपको पेट स्कैन में दिखता ही नहीं है कि कैंसर ग्रो हो रहा है, एक्चुअल में ग्रो हो रहा होता है. तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि अभी परसों की बात है. बट वही है कि मैं जब भी ऐसे केसेस देखती हूँ मुझे आप सबकी स्टोरीज याद आती है, और भी बहुत लोग हैं कि हाँ जब ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मेरे बाकी वाले पेशेंट्स भी ठीक हो सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर sharing your journey, and it's been inspiring many others. And thank you, Divya, for bringing these stories out to others in your own ways by adding more smile to it. So just beautiful. Komal, you want to share something?
Yes, Komal. आई वांटेड टू से कि है ना जब भी एक्चुअली किसी को कैंसर होता है तो है ना दिव्या इज सो स्मॉल ना, तो वो लोग है ना दूर भागते हैं कि जैसे दूसरी स्टोरीज नहीं सुने, नेगेटिविटी आएगी या यू नो हम लोग और अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है। पर है ना दिव्या को यानी कि उससे पॉजिटिविटी आती है दूसरों की स्टोरी सुन के, यानी शी इज सो ब्रेव एट हार्ट। मुझे तो यानी बिलीव ही नहीं होता, यानी वी हैव गॉट सपोर्ट ग्रुप्स अदर देन ये ज़ेन ऑनको आल्सो इन इंदौर, तो पीपल लीव द सपोर्ट ग्रुप जस्ट बिकॉज कि इतने सारे रीअकरेंस और ये सब की स्टोरी सुन के ना बहुत लोगों को नेगेटिविटी आती है, बट दिव्या इज द वन जो है ना उसको पॉजिटिवली लेती है और है ना यानी उसे ये रीअकरेंस और ये सब दूसरों का देख के उसे ट्रबल नहीं होता, बल्कि वो उससे इंस्पिरेशन लेती है और वो सबको गाइड करती है कि कैसे और पॉजिटिव रहे। तो यानी दिस इज अ वेरी यूनिक क्वालिटी दिव्या की, यानी कैसे इतनी समझदार है, इतनी छोटी सी लड़की, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है देख के। शी इज वाओ। Thank you for sharing. Oh, wow, Divya. तारीफें ओवरफ्लो हो रही है आज तो। Always. I'm like, अब मैं क्या बोलूं? तो मेहुल ने आपके लिए लिखा है स्माइल का फुल फॉर्म, सी मिरेकल्स इन लाइफ एवरी डे। So that's so apt. Yeah. So Divya, last few words you want to share with everyone? Like, thank you everyone for giving me this opportunity and encouraging me so much. I was so nervous and मैं मेहुल से कोई बोला था, मेहुल से was like मुझे एक बार कॉल कर देना, मुझे है ना मेरे बिना अटेंड स्टार्ट मत करना सर्कल्स। लाइक मैं बहुत नर्वस हूँ, I don't know what will I share, but जब मैंने स्टार्ट किया I was too nervous, but then seeing everyone's smiling face and encouraged me. And cancer है ठीक हो जाएगा. Yeah. So sorry to interrupt. This is Sangeeta here. Hello. I just joined in a little later because I had a consult. And I really, I only what I heard is Divya is so brave and all. I'm sure you must be all of that people are saying. But can you, if you have time, in one liner, tell me what was your story, because I missed out on that, or personally on my number, please. So, Sangeeta, can you message me your number and I will get you in touch with Divya and also share her story. Acha, theek hai. Thank you so much, Divya is winner of blood cancer 5 years back. As 18 years, she was diagnosed, and then she has recovered from it. And many other diseases she has come across where doctors has given up on her 2 times, but she's here with us, smiling. And also Divya is sharing stories of other people who have gone through cancer and caregivers, survivors, patients, and many others. So she's a God-gifted child. She's got, sorry? God's gifted child. Oh, lovely. Wow, yeah. Really good. Applause for that. Really great applause for that. Thank you. So please do message me and a number, and Divya, if you're okay with it, give me a time slot which is comfortable for you so that I can hear from you personally as well. Yeah, I'm completely okay. Yeah. Are you in Indore? Are you in Indore? No, I am in Byawar near Ajmer. Okay, I just heard somebody speaking from Indore, so I thought maybe you're in. Okay, so lovely. Anyway, it doesn't really matter what is the venue. What matters is how positive. I mean, what you are through any journey. Any one of us should be as positive as you. Thank you. Yes, Sangeeta, I've just asked your number in the private chat, so you can share that. And to everyone. What's your good name, dear? What's your good name? What I see is Zen Onco. Love heals cancer. So your good name, please. My name is Dimple. Oh. And, and we do circle like this every Sunday, 5 p.m. So today is again a unique circle with Divya. And every Sunday, Divya hosts the circle for everyone else. So great. So thank you so much, everyone, for joining in today's circle. I begin the circle with the normal face, but see the smile after the circle. So Divya is spreading smiles everywhere. And Divya की family को भी बहुत बहुत धन्यवाद.
दिव्या के भाई, मम्मी पापा and the entire family. So सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, and it's the family support which helps a lot in the treatment. So thank you for being an example for that. So all the people, all the members, thank you for creating this space so beautiful, so sacred, full of laughter, smiles, hope and inspiration to many others. And we'll see again in next Healing Circle Talk, Sunday 5 p.m. And thank you so much, everyone. Yeah. Thank you. And thanks a lot, Divya, for being who you are. Thank you so much. उदयपुर में रहती हूँ जी दिव्या जी, मैं उदयपुर में रहती हूँ. ओह, हमारा मिलना बिल्कुल होगा कभी. Great. Yes. So thank you, and with this we will close our today's circle, and thanks again, Divya. Thank you so much.